السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج جناب بڑی گرم تقریر میں کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، بڑی گرم تقریر کرنے والا ہوں، اور تقریر بھی کرنے والا ہوں نواز شریف کے خلاف۔ اگر ہمت ہے تو سنیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آگے نکل جائیں۔ بات یہ ہے سر، میں یہ تقریر کرنے پہ کیوں مجبور ہوا ہوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے جو خاص طور پہ عام طور پہ پاکستانیوں نے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نونیوں نے جو نواز شریف سے امیدیں لگا کے رکھی تھیں، وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں سر، نہیں ہوئی امیدیں۔ تو کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب، آپ 4 سال لندن میں رہے، ہم آپ کا دفاع کرتے رہے کہ کوئی گل نہیں جی، بیمار ہے، علاج ہو رہے ہیں، وہ جناب ان کے وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اب کڈنی ہے، اب ہارٹ ہے، اب فلانا ہے، اور یہ وہ آپ نے گزار دیے 4 سال، 4 سال گزار دیے، اور قوم انتظار کرتی رہی کہ جناب یہ ہے وہ۔ لوگوں نے آپ کی محبت میں یہ برداشت کیا، 4 سال کا پیریڈ برداشت کیا۔ پھر جناب روزانہ خبر آتی تھی، 1 سال تک تو یہ خبر آتی تھی کہ نواز شریف آیا نواز شریف اگلی فلائٹ کے ذریعے، اگلے مہینے، روزوں کے بعد، عید کے بعد، قربانی کے بعد۔ ہم انتظار کرتے رہے، ہم کرتے رہے انتظار، آئیو لالی آئیو، ٹھک ٹھک تھینی نہیں، چونج مینڈی گھڑینی نہیں، آئیو لالی آئیو۔ تو جناب ہم اس انتظار میں رہے۔ یہ سرائکی جو ہے نا وہ سمجھیں گے ٹھک ٹھک تھینی نہیں، چونج مینڈی گھڑینی نہیں، آئیو لالی آئیو۔ یہ ایک کہانی ہے، میں آپ کو بعد میں اس کی بتاؤں گا، جس کو آتی ہے تو وہ بتائے۔ تو نواز شریف صاحب نہیں آئے۔ پھر جناب آخر اللہ اللہ کر کے نواز شریف صاحب آ گئے۔ ہم جناب ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے لگ گئے، میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے نے، میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے نے۔ تو میاں صاحب آئے، آ کے ریون بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا جی گھر سے باہر نکلو۔ نواز شریف صاحب نکلے۔ کتنے نکلے؟ 100% نکلنا تھا نا، 10% نکلے، 10%۔ نہ پشاور گئے، نہ کراچی گئے، نہ کوئٹہ گئے، نہ وہ کسی کشمیر میں ادھر ادھر کہیں نہیں گئے۔ لاہور میں 2-4 جلسے کر کے تے پیچھے ٹھس ہو کے اپنی کچھار میں چلے گئے۔ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، نواز شریف کے بڑا اثر ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک۔ تو نواز شریف صاحب نہیں نکلے۔ جو تھوڑی بہت مسلم لیگ نون زندہ رہی وہ مریم نواز کی مرہون منت رہی، مریم نواز کی۔ لیکن نواز شریف آئے اور آخر میں یعنی اس میں بھی نواز شریف نے لوگوں کو مایوس کیا کہ جلسے ہی 2-4 کیے، 2-4 جلسوں میں ہی تھک گئے، پلیٹلیٹس پھر نیچے گر گئے۔ پھر جناب کیا ہوا؟ آخر تک یہی لگتا رہا نعرہ۔ ایک تو نعرہ بدل دیا کہ وہ نعرہ جناب کہ کون سا نعرہ تھا بھلا وہ کہ وہ جو فوج کے خلاف نواز شریف کا نعرہ تھا، آخر میں مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ نعرہ بھی بتاتا ہوں۔ تو وہ نعرہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہم دیکھیں گے، اور وہ نعرہ مجھے ابھی یاد آئے گا، میں بتاتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا جی؟ آخری دن نواز شریف کا نعرہ لگتا رہا کہ نواز شریف آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور ادھر پیپلز پارٹی یہ نعرے لگاتی رہی کہ ہم نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ آخری تقریر جو نواز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں کی 24 گھنٹوں کے بعد کہ ہم جیت گئے ہیں لیکن ہمیں اکثریت نہیں ملی واضح، اس لیے شہباز شریف وزیر اعظم۔ واہ جی واہ، نعرے لگتے رہے،
वोट को इज्जत दो, वो नारा था वोट को इज्जत दो, ये नारा इन्होंने बदला। नवाज शरीफ ने किसके साथ कंप्रोमाइज किया? आसिम मुनीर के साथ तो कंप्रोमाइज आपने नहीं किया। ना आपने बाजवा का नाम लिया, ना आसिफ सईद खोसा का नाम लिया, ना साकिब नासूर का लिया, ना फैज़ हमीद का लिया। आपने नारा ही अपना बदल लिया, वोट को इज्जत दो, नारा बदल दिया ना आपने। तो फिर जी हमें सज्जी दिखा के खब्बी मारी और शहबाज शरीफ हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया। सत बिस्मिल्लाह। शहबाज शरीफ में बड़ी खूबियां हैं, बड़ी खूबियां, लेकिन उसमें छोटे भाई वाली खूबियां। वो कहता है बड़े भाई का मेरे सर पे हाथ हो तो मैं घोड़े की तरह दौड़ूंगा, और अगर बड़ा भाई का सर पे हाथ नहीं है ना तो वो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, और उससे हुकूमत नहीं चल रही, नहीं चल रही हुकूमत। और पीपल्स पार्टी ने क्यों जोर लगाया कि हम नवाज शरीफ को नहीं मानते? क्योंकि उन्हें पता था कि नवाज शरीफ को फेस करना मुश्किल है। वो 3 दफा का तजर्बाकार वजीर आजम है, वो टफ टाइम हमें दे सकता है, लेकिन ये शहबाज शरीफ हमारे लिए खिलौना साबित होगा, मिट्टी का खिलौना। हम जैसे करेंगे ऐसे मोड़ेंगे तो चोंच नीचे हो जाएगी, ऐसे मोड़ेंगे तो ऊपर, मोम की नाक या मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो वो जितनी हम चाबी भरेंगे, जितना राम ने दी उतनी भरेंगे चाबी और उतना चले खिलौना। ठीक है, तो ये इन्होंने करके साजिश करके सारी आईनी सीटें भी पीपल्स पार्टी ने ले ली और एक डमी वजीर आजम हमारे सर पे बिठा दिया। डमी मैं कह रहा हूं इसलिए नवाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से। तो इसको भी कौम ने बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ साहब तेरा लंदन में स्टे कौम ने बर्दाश्त किया, तेरी मुहिम ना चलाना कौम ने बर्दाश्त किया, सज्जी दिखा के खब्बी मार के आ गया तो कौम ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब कौम बर्दाश्त नहीं करने लगी। अब पाकिस्तान पहले कर्जे में इतना इतना डूबा हुआ था ना, अब इतना इतना हो गया, नक्को नक हो गया। इस हुकूमत का काम ही भी यही है कि जनाब कर्जा लो और इधर बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ाओ, अवाम का खून पसीना निचोड़ो। और जबकि नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने IMF से जान छुड़ाई थी। इन्होंने पहले भी, मैं जब वकालत में शुरू में आया था, मुल्क संवारो कर्ज उतारो, मैंने तब भी 2000 रुपया भी इनके अकाउंट में जमा कराया था, और मैंने हाई कोर्ट में बैनर भी लगाया था अपना मुनसिफ अमान के नाम से कि जनाब लोग दें इसमें पैसे। तो हम तो जनाब कदम कदम आपके साथ हैं, आपको ही हमें आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने अगर अर्ज की तो शिकायत होगी। ठीक है, फिर जनाब अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप थोड़ी सी मरीम नवाज की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन आप कौमी लेवल के लीडर हैं, आप सूबाई लेवल के लीडर नहीं हैं। पहली बात तो ये कि आपने ये गलत किया, भाई को बिठा दिया और लेम एक्सक्यूजेस, ओ जी अक्सरियत नहीं मिली। ये कौन सी अक्सरियत? कब आपने कहा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा? ये कब कहा था आपने? और भाइयों में फर्क क्या है? आप हिम्मत हार गए, हिम्मत। आप समझ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, मैं आऊंगा तो ये वो। भाई आते ना, कैंपेन करते। 4 साल लंदन में क्या बैठे करते रहे, क्या वहां पे बैठ के करते रहे? आपने कुछ नहीं किया। लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो अब मायूसी में बदल रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। शहबाज शरीफ से अगले महीने में इस्तीफा लें और खुद आ जाएं, नई काबीना के साथ आए। अपने जो आपके शेर हैं ना, जैसे साद रफीक है, मियां जवेद लतीफ है, राना सनाउल्लाह है, खुरम दस्तगीर है, इस पूरी टीम को लेके आए और पाकिस्तान की तकदीर बदलें, जिसके लिए हम आपके लिए दुआएं करते रहें। हमारा आपसे कोई तल्लुक रिश्ता नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब झुकने वाला नहीं, नवाज शरीफ साहब बिकने वाला नहीं, नवाज शरीफ को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। लेकिन जेड़ा ताड़ा भाई है ना, वो डिक्टेशन लेता है, वो यस सर करता है,
वो बूट पॉलिश भी कर लेता है बवक्त ज़रूरत। हमें इससे कोई उम्मीदें नहीं होंगी। जिन्हें होंगी वो कहते हैं ना, तो हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। जिन्हें तुमसे उम्मीद होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। बात ये है कि जनाब अली, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में एक बेहतरीन इनकलाबी सूरत पैदा हो, वो आप कर सकते हैं। आप आएंगे, मैं कहता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटियाँ भी मिल जाएंगी और लोग भी आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के अंदर कोई ऐसा तजर्बा नहीं है जो आपके अंदर है। नाजरीन, कारईन, सामीन, बताओ कि अगले हफ्ते, अगले महीने शहबाज इस्तीफा दे, नवाज शरीफ आए, IMF का कर्जा बंद करो, कौम से अपील करें, नवाज शरीफ साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब कौम से अपील करें कि आओ जी कर्जा उतारो। ओवरसीज वालों से अपील करें कि आओ जी कर्जा उतारो। हमें उम्मीद है कि इस तरह IMF की किस्तें जो है ना ख़त्म होती जाएंगी। हमारा घर का अपना आटा इतना महंगा, अपने घर की मुर्गी इतनी महंगी, अपने घर का गैस इतनी महंगी। काबिले शर्म बात है, जिस गैस का बिल एक साल पहले 300 रुपए आता था, आज वो 3000 रुपए आता है। और इनके कलेजे ठंडे नहीं हो रहे, इनके कलेजे आए रोज महंगाई करते जा रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं आवाम की आवाज़ बन के आपको ये कह रहा हूं कि आप आगे आएं। फेल होते हैं तो होएं, लोगों की उम्मीदें हैं। जब आप आएंगे, आधा हौसला तो है आपके आने से ही लोगों को मिल जाएगा। आधी उम्मीद आपके आने से ही बन जाएगी कि जनाब आ गए ने, नवाज शरीफ साहब आ गए, जो मुल्क को बचाने वाले हैं, जिनको मैं हमेशा आपको कहता हूं कि नवाज शरीफ की हम इसलिए हिमायत करते हैं कि वो मेड इन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का बेटा है। वो कभी उससे बार्गेनिंग आप कर ही नहीं सकते कोई जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। इन्होंने तभी तो सर उठाए हैं। आप 4 साल बाहर ना रहते, आप लीडर हैं, या फिर आप कौम को बता दें कि मैं जी बीमार शिमार रहना वा तो मैं नहीं आ सकता। वो जो रेलवे में एक बंदा सफ़र कर रहा था ना, तो वो नाल एक सीट खाली पई सी, जेड़ा बैठता सी तो उन्होंने कहता सी, ओए उठ, तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। वो आगे चला जाता था। दूसरा, तीसरा, चौथी दफ़ा बंदा आया ना, उन्होंने कहा उठ, तेनू नहीं पता मैं कौन हाँ। वो भी को बदमाशी, उन्होंने कहा कौन है तू? कहता यार मैं बीमार हाँ। तो जनाब नवाज शरीफ साहब आओ, कौम आपका इंतजार कर रही है। कई दफा जंग जो है ना हौसले और हिम्मत से जीती जाती है। शहबाज के आने से हमारे हौसले पस्त हो गए हैं। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, ये सारी तकरीर नून लीग के लिए है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं जनाब आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ये इतनी फैलाओ कि ये नवाज शरीफ तक पहुँच जाए। मैं इधर लंदन में सबको कह रहा हूँ, नून लीगियों को, कि यार आपने नवाज शरीफ को क्यों भेजा है? आराम करने के लिए भेजा है तो इधर ही बुला लो, उसको वापस बुला लो। इधर भी मायूसी छाई हुई है। ओवरसीज वालों को हिम्मत दो, पाकिस्तानियों को हिम्मत दो, और इस भंवर से अपनी ये कश्ती जो है पाकिस्तान की कश्ती, ये निकालो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।